Good morning. Today we are going to discuss Hindu Minority and Guardianship Act 1956. First thing, it must be clear, under Hindu law, we are having two different laws. The first law is for the adoption and the second law is for guardianship. This act is just talking about guardianship, not adoption. Adoption is completely a different topic. यह जो एक्ट है यह है अवयस्कता एवं संरक्षक अधिनियम 1956. There are only few provisions which are important for the purpose of examination, and this act is talking about who is minor and who can be appointed as a guardian for that minor. Okay, in each and every situation we are having a guardian. First thing, the name of the act is HMGA, Hindu Minority and Guardianship Act 1956. अधिनियम का नाम है. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल है और लागू किया जाता है. देन हु इज माइनर? द डेफिनेशन क्लॉज इन द HMGA is talking about who is minor. The first and most important definition is the person who has not crossed the age of majority, which is 18 years. जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है वो माइनर या अवयस्क माना जाएगा. तो हियर की फर्स्ट थिंग, हु इज माइनर, एंड द सेकंड थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट, हु इज गार्डियन. ओके, हु इज गार्डियन? रिमेंबर, गार्डियन इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अ माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी. A person can be appointed as a guardian. किसी को संरक्षक बनाया जा सकता है किसी अवयस्क के लिए, अवयस्क की संरक्षकता के लिए या अवयस्क की संपत्ति के लिए. So there are two things who can be appointed as guardian. There may be two persons can be appointed as a guardian. Remember, the first is for the body of the minor and the second is for the property of the minor. The person who takes care for the minor or his property or for both, that person is considered as guardian. In this act we can discuss that there are four kinds of guardian. First, natural guardian. Okay, the first one is natural guardian. Second is testamentary guardian. Third is guardian appointed by court and guardian appointed by court of wards. Okay. So there are, first one is a natural guardian, second is a testamentary guardian, third is a guardian appointed by court, and fourth one is guardian appointed by court of wards. Okay, in India we have Guardians and Wards Act 1890. Okay, there is one act, Guardians and Wards Act 1890. 1890 का Guardian and Wards Act है. संरक्षक एवं प्रतिपाल्य बाल अधिनियम 1890. In this act, Guardians and Wards Act, this act is talking about the guardianship of minor. Okay, so previously before the commencement of HMGA we were having one act which was dealing with the guardianship. इससे पहले भी हमारे इस 1956 के एक्ट से आने से पहले we were having a provision. हमारे पास एक ऐसा प्रोविजन था कि बच्चों की संरक्षकता से रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी मामले हैं किस तरीके से तय किए जाएंगे. तो यहाँ जब हम बात करते हैं इस एक्ट की, इस अधिनियम की, तो वी मस्ट रिमेंबर कि दिस एक्ट ऑफ 1956 HMGA, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, इट इज द सप्लीमेंट्री लॉ. ओके, यह एक्ट, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, स्टिल इन एग्जिस्टेंस एंड इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट्री लॉज. ओके, जो प्रोविजंस गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में नहीं दिए गए हैं उन पर ये एक्ट बात करता है. ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसे रिमूव कर दिया, इसे खत्म कर दिया, इसे समाप्त कर दिया. ये एक्ट आज भी एग्जिस्टेंस में है. ओके, बट स्पेसिफिकली फॉर हिंदूज वी हैव अ प्रोविजन रिलेटिंग टू द गार्जियंस अंडर HMGA. लेकिन ये जो एक्ट है ये सीमित है, हिंदुओं पर लागू किया जाता है. सो फर्स्ट थिंग,
there were certain courts established under this act, and the courts were guardians and the wards court, and they can decide the matters relating to the minors. Okay, so first kind of guardian is natural guardian. When we are talking about the natural guardian, firstly we are talking about the legitimacy. Okay, if there is any legitimate child, father will be the guardian. Okay, after father the mother. Okay, किसी भी बच्चे का गार्जियन जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, तो सबसे पहले जो फादर है, अगर बच्चा लेजिटिमेट है, धर्मस्थ संतान है, तो उसका फादर है वह उसका गार्जियन माना जाएगा, और पिता नहीं है तब माता को उसका गार्जियन माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष तक की है, a child who has not crossed the age of 5 years, जनरली कस्टडी विल बी विद द मदर ओनली। तो गार्जियन फादर रह सकता है, लेकिन बच्चे की जो अभिरक्षा है वो मदर को दी जाएगी। ओके, इफ फर्स्टली गार्जियन ऑफ अ माइनर हिंदू बॉय और गर्ल विल बी द फादर, इफ चाइल्ड इज द लेजिटिमेट चाइल्ड, तो लेजिटिमेट चाइल्ड होने पर, धर्म संतान होने पर फादर पहला गार्जियन होगा। फादर नहीं है तब माता को गार्जियन माना जाएगा। लेकिन 5 साल तक का बच्चा है तो गार्जियन फादर रहेगा, लेकिन बच्चे की जो कस्टडी है वो माता के पास रहेगी। मदर विल बी हैविंग द कस्टडी ऑफ दैट माइनर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर चाइल्ड इलेजिटिमेट है, इन केस ऑफ इलेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, मदर विल बी द गार्जियन, आफ्टर मदर द फादर। देन इफ देयर इज अ माइनर मैरिड गर्ल, the husband will be the guardian of that minor. So these are called natural guardian. Okay, so first thing, when we are talking about the guardianship, first the father, then the mother. Custody of the 5 years children will with the mother only. If there is illegitimate child, mother will be the first guardian, then the father, and in case of minor married girl, husband will be the guardian. So this section 6 is having this provision. Okay, then testamentary guardian. Testamentary guardian means guardian appointed through a will, testament, through a document, through a will of a person. जब हम testamentary guardian की बात करते हैं तो we have to remember certain provisions कि who can be the testamentary guardian. जब भी testamentary guardian की बात की जाएगी, जो will से appoint किए जाते हैं, will कौन लिखेगा? mother और father. Okay, mother और father they are having a right to make a will for appointing a guardian for their minor children. Suppose I am the father and I am willing to appoint a guardian for my child. Ki I am about to die, I am suffering from certain disease and I am about to die. In that condition, I am having a right to make a will in favor of X, Y or Z. Ki after my death, X will be the guardian of that minor. Okay. So in this situation, we are having a provision here, which is talking about the testament. So who can appoint? Firstly, if father. There are few provisions under section 9. Father made a will or testament to appoint a guardian X. Suppose I am just giving an example. Father ने will लिखी है, will he appoint X as the guardian of my minor son. Okay, father died. At the time of the death, mother is alive. अगर फादर ने will लिखी है कि मेरे मरने के बाद X गार्जियन होगा मेरे माइनर सन का, but at the time of the death of the father, mother is alive, then mother will act as a guardian because she is the natural guardian. तब मदर ही उस बच्चे के नेचुरल गार्जियन के तौर पर काम कर सकती है, गार्जियन मानी जाएगी। सेकंड, फादर wrote a will, he appointed X as a guardian. Again, mother is alive, she wrote a will, appointed Y as a guardian. Then the later will be considered as a valid will. फादर ने will लिखी, फादर की डेथ हो गई, फिर मदर ने will लिखी, मदर की डेथ हो गई, तो जो बाद में जिसकी डेथ हुई है उसका जो बंदा है वो अपॉइंट किया जाएगा एज ए गार्जियन। सपोज आई एम द फादर, मैंने एक्स को अपॉइंट किया, ठीक है, माई वाइफ अपॉइंटेड वाई, वी बोथ आर अलाइव, ओके, हम दोनों ही जीवित हैं, मैंने एक्स को अपॉइंट किया, मेरी वाइफ ने वाई को अपॉइंट किया, मेरी डेथ हो जाती है, आफ्टर माई डेथ माई वाइफ इज देयर, तो माई वाइफ विल एक्ट एज अ गार्जियन, तब मेरी वाइफ उस बच्चे की गार्जियन के तौर पर काम करेगी। आफ्टर हर डेथ she died later, that's why the person appointed by her will be acting as a guardian of my minor son or daughter. तो जिसने बाद में अपॉइंट किया है वो टेस्टामेंटरी गार्जियन माना जाएगा।
तो टेस्टामेंट्री गार्जियन में फादर अलाइव है, फादर अपॉइंट करेगा, मदर अलाइव, मदर अपॉइंट करेगी. एंड इन केस ऑफ अ माइनर गर्ल, whether the father and mother are there, but if her husband is major, husband will act as a guardian. Okay. Then we have to remember certain important things here कि certain important thing कि if कि a guardianship of a minor married girl comes to an end after her marriage. जैसे ही शादी होती है तो माइनर गर्ल है उसकी जो गार्जियनशिप है वो समाप्त हो जाती है, चाहे वो टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप हो या नेचुरल गार्जियनशिप हो. तो हस्बैंड विल एक्ट इफ हस्बैंड इज मेजर. ओके, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर माइनर, दोनों ही माइनर है, उनकी शादी कर दी गई है, तो जो लड़की है शी वुड बी कंसीडर्ड एज कि फादर इज द गार्डियन. अगेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेचुरल गार्जियन, और नेचुरल गार्जियन नहीं है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंटेड थ्रू अ विल. यहाँ पर ये दोनों नहीं है तो कोर्ट इज हैविंग अ राइट टू अपॉइंट अ गार्जियन. ओके, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में रहते हैं, तो दे आर जनरली फादर एंड मदर आर लाइफ, फादर एंड मदर कैन एक्ट एज अ गार्जियन. बच्चे रहे कहीं भी, गार्जियन फादर और मदर ही माने जाएंगे. फर्स्टली द फादर, देन द मदर. इन केस ऑफ इलेजिटिमेट सन, फर्स्ट द मदर, आफ्टर दैट फादर. सो जहाँ पे फादर एंड मदर दोनों अलाइव नहीं है, इन दैट सिचुएशन कोर्ट में अपॉइंट एनी थर्ड पर्सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी. कोर्ट कैन अपॉइंट एनी ऑफ दिस पर्सन एज अ गार्जियन, और एनी थर्ड पार्टी, एनी रिलेटिव, एनी फ्रेंड कैन बी अपॉइंटेड एज अ गार्जियन हियर. एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल. अब सपोज guardian appointed by court of birth, कि if natural guardian is not there, or the natural guardian is renounced, the word is ceases to be a Hindu, he or she is the of unsound mind, and they are not able to perform their duty. In that situation, court, here we can discuss the family code, district code, or the civil code. And here under the Guardians and Wars Act 1890, any court of wars appointed a guardian can be treated as a guardian appointed under this point. So in total there are 4 kinds of guardian. Section 8 is talking about the powers of the natural guardian. Remember, a natural guardian can do anything which is beneficial to that minor. जो भी natural guardian है, that natural guardian can do anything at any point of time which is beneficial to the minor. Okay, which is beneficial to the minor, which is in the interest of the minor, they can do anything. But under section 8 you have to remember certain points कि if there is any immovable property in the name of the minor के नाम पर कोई अचल संपत्ति है. सपोज किसी माइनर को उसके दादाजी ने एक मकान गिफ्ट कर दिया. नाउ ही इज ओनली ऑफ 5 years, वो 5 साल का है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर नहीं सकता, और बट ही कैन नॉट मेंटेन दैट प्रॉपर्टी एज वेल, ना तो वो संभाल सकता है उस प्रॉपर्टी को, तो गार्जियन कैन टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो सेक्शन 8 में जो पावर दी है, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन. इफ देयर इज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द माइनर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, guardian cannot transfer that property by way of sale, by way of mortgage, okay, by way of lease. Okay, lease में देने के लिए there are 2 rules, again they are given in the section 8. तो lease, mortgage, sale, exchange, okay, gift of the minor's immovable property is not allowed without the prior permission of court. कोर्ट की परमिशन के बिना इस तरह की संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. सेक्शन 10 विच इज हैविंग वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सेक्शन 10 में कहा गया है कि अ माइनर कैन नॉट बी द गार्जियन फॉर द अनदर माइनर्स प्रॉपर्टी. ओके, इट इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन. सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का संरक्षक, प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता है. तो क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करें कि एक माइनर का तो गार्जियन हो सकता है, लेकिन वो उसकी संपत्ति का गार्जियन नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, okay, for example, there is a 16 years old mother, okay, a minor mother is there is a child, who will be the guardian? Firstly the father suppose 17 साल का है, 17 साल का फादर है, मदर है 16 साल की, बच्चा नवजात शिशु है. तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन, दैट मदर, दैट फादर, दे कैन बी द गार्जियन ऑफ अ माइनर. तो सेक्शन 10 में कहा गया है अ माइनर, इट मीन्स माइनर कैन बी द गार्जियन ऑफ द अनदर माइनर, बट
द माइनर कैनॉट बी द गार्जियन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो एक माइनर, आपको कई संभावनाएं, कई परिस्थितियां, कई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलेंगी कि एक बंदा दूसरे की प्रॉपर्टी का गार्जियन, दूसरे की पर्सनली गार्जियन हो सकता है, सुरक्षा कर सकता है, लेकिन दैट पर्सन कैन नॉट बी द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर पर्सन। एंड previously we were having two certain concept like de facto guardian. Okay, now we are not having such kind of concept of de facto guardian. आज की तारीख में after the commencement of this act HMGA we are not having any de facto guardianship in India. Okay, कि जो अपने आप से ही guardian बन जाते हैं, who are actually not guardian but they are acting as a guardian. Okay, de facto guardian का concept नहीं है. Now in India there are only 4 kinds of guardian. Now these the most important thing कि बहुत से ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे जहाँ पे फादर या मदर दोनों से ही कस्टडी ले ली जाती है और थर्ड पार्टी को कस्टडी दे दी जाती है. इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस एक्ट दे आर नॉट बाउंडिंग बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 13. Okay, section 13 is talking about the welfare of minor is of paramount consideration. हर हाल में बच्चे का कल्याण देखा जाएगा. Okay, सपोज मदर है, वो भी शराबी है, फादर है वो भी शराबी, दे आर नॉट टेकिंग ऑफ द माइनर, तो कोर्ट कैन ट्रांसफर द कस्टडी ऑफ दैट माइनर टू अनदर पर्सन. कोर्ट कैन अपॉइंट एनी थर्ड पर्सन एज अ गार्जियन because they are not able to take care of that minor. So there may be certain reasons कि paramount the welfare of the child to be paramount consideration. ये हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बच्चे के जो देख रेख है वो बेहतर तरीके से होनी चाहिए, यही इसमें कोशिश की जाती है. तो HMGA बेसिकली टॉकिंग अबाउट द गार्जियनशिप. गार्जियनशिप मीन टेकिंग केयर ऑफ अ माइनर. तो हर बंदे का, कि जब हम माइनर रहे होंगे, आप माइनर रहे होंगे, कोई ना कोई बंदा होता है जो कोई ना कोई पर्सन, देयर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, मदर, फादर, है ना, अंकल, आंटी, अपॉइंटेड बाय कोड, अपॉइंटेड बाय विल, कि हु कैन टेक केयर ऑफ दैट माइनर, जो उस बच्चे के का ध्यान रखता है, देख रेख करता है. तो जो देख रेख करने वाला है वो संरक्षक है. दिस कंसेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अडॉप्शन. अडॉप्शन से या गोद लेने से, दत्तक लेने से इसका कोई संबंध नहीं है. तो गार्जियनशिप, हाँ, यस, इफ अ चाइल्ड इज अडॉप्टेड बाय पर्सन, ठीक है ना, कि अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो इन दैट सिचुएशन द अडॉप्टिव फादर विल बी द गार्जियन, देन द अडॉप्टिव मदर. ये पॉसिबल है, लेकिन अडॉप्शन का कंसेप्ट दूसरा है. तो अगर अडॉप्टिव फादर है तो ही विल बी एक्टिंग एज नेचुरल गार्जियन अंडर सेक्शन 6 में जैसे कहा गया है. तो अडॉप्शन में भी जो टेक केयर करता है, जो संभालता है, जो देख रेख करता है, यही प्रोविजन इसमें डिस्कस किए गए. देयर आर ओनली 13 सेक्शंस एंड इट इज लिटरली an easy act to understand, but application of this act is quite difficult. In our next class we will discuss certain other points of the Hindu law. Thank you.